ڈی سی کرم پر حملہ اور فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کو شناخت کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی کے پی کی زیر صدارت آج کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوگا۔ ڈی پی او کرم سمیت اعلیٰ پولیس افسران شریک ہوں گے۔ وگن میں شرپسندوں کے حملے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 3 محافظ زخمی ہو گئے تھے۔ جاوید اللہ محسود اور زخمی محافظ سی ایم ایچ ٹول سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور منتقل۔ صبح 10:30 بجے قافلہ روانہ ہونے سے پہلے مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے بات کر رہی تھی کہ مسلح شرپسندوں نے سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پارچنار جانے والے قافلے روک دیے گئے۔ کرم واقعے پر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، آئی جی کے پی اور دیگر کی شرکت۔ بریفنگ میں کہا گیا علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ کسی دہشت گرد سے رعایت ہوگی نہ معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے قلعہ قمع کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مضمون لیکن ناکام کوشش ہے۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے۔ حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مضمون مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ہم معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ تربت میں مسافر بس میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی۔ پولیس افسر زہیب حسن اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم کے دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے انسان کھلانے کے حقدار نہیں۔ دہشت گردی کی ہمیں اس وقت ایک نئی جنگ کا سامنا ہے اور اس کی بنیاد وہ دہشت گرد ہیں کہ جنہیں پچھلی حکومت جاتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر دوبارہ گھسا گئی۔ ہمیں دہشت گردی کی نئی جنگ کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت جاتے ہوئے دہشت گردوں کو دوبارہ گھسا کر گئی۔ ہم کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کا سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم، اب اکنامک لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ کہا ہم ایسی حکومت ہیں جس کا معاشی ڈنڈا ہے، چاہتے ہیں ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھنڈا رہے۔ ذرا سی بات کے لیے مذاکرات کے دوران بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گائیڈنس لے کے فلاں بات کا کیا جواب دیں گے، وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں۔ حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو ایک عملی شکل دی جائے۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انتظار ہے۔ ذرا سی بات کے لیے بانی سے ملاقات کی ضرورت تو آگے بڑھنے میں مشکلات ہوں گی۔ پی ٹی آئی ٹیم کو اپنے لیڈر سے اتنا اعتماد ملنا چاہیے کہ وہ مذاکرات میں آگے بڑھیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم مذاکرات کو اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ بانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ پی ٹی آئی اگر ٹرمپ کے حلف کے مطابق تاریخ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں۔ جیل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے یا وہ وفاقی حکومت کا ہے۔ ایران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے۔
जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाक की हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहिए। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शन पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाज़ेह हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का इज़ाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजवीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएंगे। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड के साल अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास। प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, वहाँ 80% पास। अंदरूनी सिंध 80% तलबा को पास, कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की दरसगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा तो अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मियार को बर्बाद करने का फैसला किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं नौजवानों से किताबें छीन कर क्लाशनकोव थमाने वालों का तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। एलन मस्क को स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का एलन मस्क को एक्स पर पैगाम। स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स सनम जवाली ने लिखा स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है, जहां हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलन मस्क ने इस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। स्टारलिंक को पाकिस्तान इसलिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज भी माउंटेन्स जहाँ पे आपकी इंटरनेट पहुँचाना बहुत महंगा होता है, मगर इसके साथ आपके लिए बड़ा सस्ता है। अगर आपके पास वो पैनल मौजूद है तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अगर पैनल हो तो सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा फनानुल्लाह कहते हैं अभी ज़्यादा ट्रैफिक गेट वे से आता है। स्टारलिंक बराह रास्त कनेक्ट होगा तो हम उसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मॉनिटरिंग होगी तो फिर बात हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। गुजरात के मोहल्ला बकरा मंडी में कोयले की गैस के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई शामिल। बच्चों की वालिदा तैयबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए घर से बाहर गई। जब वापस आई तो तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जांबर ना हो सके। 4 बच्चों के वालिद शफीक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में हैं। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादत मना रही हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशलबदारी की। शुरका का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादत दिलवाए। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ इल्हाक़ का हक दिया था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानी को वीज़ा जारी। उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाघा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। HBL PSL सीजन 10 के लिए टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने 7 खिलाड़ियों को रिटेन किया। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में
जेम्स विंस और हसन अली, गोल्ड में कप्तान शान मसूद और इरफान नियाजी, जबकि सिल्वर में अरफात मिन्हास और टिम सैफरिड और जाहिद महमूद को रिटेन किया। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को होगी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया। जिला कुर्रम में पहली बर्फबारी, पारा चनार के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी चित्राल में वक्फे से बारिश और बर्फबारी, लोवारी टॉप पर 15 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। जनूबी वज़ीरिस्तान और वादी तीरा में बर्फबारी, मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। ज़ियारत में सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए, कुदरती मनाजिर मजीद निखर गए। मस्तोंग में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। कराची में रात के हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची सीटीडी के डाकू एहलकारों की बड़ी वारदात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में शहरी से 13 करोड़ लूटने वाले एहलकार अदालत में पेश। मुलजमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, सीटीडी एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुलजमान के साथ अरसलान मलिक को अगवा किया। मुलजमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। CIA ज़राए के मुताबिक सीटीडी इंटेलिजेंस के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर तफ्तीश का फैसला किया जाएगा। इंटेलिजेंस अफसर राजा बशीर से तफ्तीश की जाएगी। सीपैक में तैनात एक DSP से भी पूछताछ होगी। कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई, घरेलू मुलाजमा समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से लाखों रुपए मालिक का चोरी शुदा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने घर से तलाई जेवरात, गैर मुल्की करेंसी समेत दीगर सामान चोरी किया था। घरेलू मुलाजमा की निशानदेही पर शौहर समेत दीगर 2 मुलजमान गिरफ्तार। पीर तक जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मसला हल ना हुआ तो तौहीन अदालत करके तकर्री कर दूंगा, फिर आकर मुझे सजा दे दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा जिना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है, जहां 2 माह से समाअत नहीं हुई। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मशद की रीढ़ की हड्डी हैं। हुकूमत कारोबार को सहूलत से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। SMEs की तरक्की से मुतालिक विफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह, शेख आफ्ताब, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ की भी शमूलियत मुतवक्किल। ज़रा का कहना है, नए बुज़रा 9 और 10 जनवरी को हलफ उठाएंगे। इसराइली फोर्सेस गजा में रात भर बमबारी, मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 270 से ज़ायद जख्मी हो गए। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। दीर अल बलाह में सहूनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ़द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है, गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा है, लेकिन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। जानलेवा कश्ती हादसे के बावजूद यूनान में इंसानी स्मगलिंग रुक ना सकी। नया साल शुरू होते ही मजीद 2 कश्तियां गैर कानूनी तारिकीन को लेकर यूनान पहुंच गई। यूनानी हुकाम ने 36 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें 23 पाकिस्तानी शामिल। इससे पहले पहुंचने वाली एक कश्ती से 74 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 4 इंसानी स्मगलर्स भी हैं, जिन्होंने तारिकीन वतन को पैसे लेकर लीबिया से यूनान मुंतकिल किया। और कराची की पहचान, साकनानी शहर क़ैद का 30वां आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मारूफ शायरा अपने कलाम पेश कर रहे हैं। सामीन शुरा के कलाम पर खुलकर दाद दे रहे हैं।